नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी नए चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट अवश्य करें। एक मिस्टर रमेश भटेजा हैं, सीनियर एक्टिविस्ट हैं। इनका भी मैं एक वर्जन सुना देता हूँ। हालांकि कुछ चीज़ इन्होंने ऐसी लिखी है, वह सब तो अनकुड़े के संबंध में उनसे मैं इत्तेफाक नहीं करता, सहमत नहीं हूँ। ये कहते हैं, डियर पेंशनर फ्रेंड्स, ऑल द पेंशनर्स वर ईगरली waiting for some decisions on pensioners issue of ex gratia, although it was neither our demand nor any provision of such ex gratia in our pension regulations. But it was mentioned in the MOU that ex gratia will not affect our demand of updation on lines of RBI. Again, on 30th February 24, the final BP settlement was not signed and left undecided for indefinite period. Now the unions say that they will not sign the BPS till 5 days banking is not decided. ये वाली चीज़ मिस्टर संजीव बंदलिस हैं, जो कन्वीनर हैं यूएफबीयू के, उन्होंने एक, मैंने आज बहुत जगह अपलोड की है और शेयर की है, एक वीडियो है। उन्होंने उसमें क्लियर ऐसा ही कहा है जो ये कह रहे हैं कि हम बिना 5 डे के साइन नहीं करने के। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 5 डे की डिमांड से हम ज़्यादा कोई उसके बढ़िया इम्प्लीकेशन नहीं मानते कि वो कोई बहुत अच्छा वो होगा, लेकिन क्योंकि हमारे एम्प्लॉइज़ उसको मांग रहे हैं, इसलिए हमने उसको के बिना हम साइन नहीं करेंगे, इसलिए हमने सिर झुका दिया उनके सामने इस डिमांड के ऊपर। लेकिन एक अच्छे और होशियार किसी भी ट्रेड यूनियन लीडर को ऐसे सिर नहीं झुकाना चाहिए, उसकी गुण दोष ज़रूर देखने चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं देखे। उनकी बात से ऐसा लग रहा है और मैं भी उसमें इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो है शाम को जल्दी दिन छिपता है और सुबह को जल्दी सूरज उगता है, करीबन आधा पौना घंटा, और 45 मिनट यहाँ टाइम बढ़ेगा, तो 45 और 45 1.5 घंटा। अगर भी 5 बजे बैंक बंद करते हैं तो 6 बज जाते हैं, और वहाँ 1.5 घंटा लगा के 7:30 बज जाएंगे, 7 ही मान लो आप। तो फिर महिला जो बेचारी इधर उधर से डे अप डाउन वगैरह करती हैं, वो कैसे करेंगी? और जो पुरुष हैं उनके भी दिक्कत आएगी, अप डाउन जो करते हैं दूर दूर से, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसा भी उनकी डिमांड है और जो वो चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो जाने। पर हमें ये बात सही नहीं लगी, उनके हित में नहीं है। A few days before it was told by unions that government has cleared this demand, but now it is said that it is still discussed. After all, what is factual position for not signing 12th BPS? Nobody knows the actual reason. Our pensioners say that the stay petition filed by Sri Vasant Wankude has blocked their path to sign. और ये जो ये भी कह रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया, वीडियो भी जारी करी थी और संदेश भी इधर उधर से भेजे हैं, मैंने सर्कुलेट करे। द नेक्स्ट टेंटेटिव डेट फॉर हियरिंग इन सुप्रीम कोर्ट MC Singla case is 1st March 24. We cannot say whether the date will be further postponed or not. Only we can hope and wait till 1st March. Friends, every time the unions plays with our sentiments, they are not having any consideration for the financial condition of the pensioners. Now we should understand that the UFBU is not in a strong position to get 5 days banking for their members. Then what they will do for pensioners? CSV and his stooges every time prove that are not honest to pensioners' demands, so in future we should not look towards them. It is our misfortune that we have to fight for justified demand, and UFBU, IBA government are cheating us. Actually, it is responsibility of banks to take decisions as per pension regulation 1995. They should understand that pensioners issue does not fall within the purview of BP negotiations. The banks are committing a financial crime by denying and delaying pension updation. I send here with a note written by me explaining why pension issues cannot be discussed or negotiated in bipartite talks between IBA and UFB. For your knowledge, only Supreme Court will decide the matter, which may be on 1st March or some other date. Thanks, रमेश भटेजा। ये इन्होंने लिखा और ये काफ़ी
अच्छे और बढ़िया एक्टिविस्ट हैं। अच्छा, एक हमारे सेंट्रल बैंक से मैसेज आ रहा है एजीएम रिटायरल बेनिफिट से, एबीसी में बता देता हूँ। डियर पेंशनर्स, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट द एक्सेस टीडीएस अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द January 24 pension has been refunded today by our office. In case of any grievances, please send mail with complete details to our office. Regards, दानिश खान, AGM रिटायरल बेनिफिट्स। और मेरा वीडियो पूरा देख लिया करें क्योंकि बीच में कई अपडेट लगा देता हूँ मैं। एक मूर्ति जी ने भी कुछ भेजे हैं, डेली वो भेजते हैं 2-3, लेकिन देखता हूँ ये कुछ क्लोज 12। अच्छा, इन्होंने लिखा है, एक तो क्लोज मूर्ति जी हैं, एस मूर्ति जी, देवपल्ली मूर्ति हैं। क्लोज 12 इन पेंशन सेटलमेंट एंड द स्मॉल कमेटी मिनट्स विच स्टेट्स द अपडेशन विल बी बाई आरबीआई फार्मूला विल गेट अस अपडेशन। एक तो इन्होंने कहा, और एक एन शंकरा सुब्रमण्यम का दिया है इन्होंने हवाला इसमें। अच्छा, एस नाकरा शंकरा सुब्रमण्यम क्या कहते हैं जो इन्होंने लिखा है, इंडियन बैंक चेन्नई, फ़ोन नंबर भी दे रखा है। प्रोमिसेस एंड अंडरटेकिंग्स कैन नॉट फाइंड ए प्लेस इन रेगुलेशन विच इज सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। दे रिमेन इन द सेटलमेंट बट द स्पेसिफीज are incorporated in regulations. For example, clause number 6 of pension settlement, which talks about DA as per RBI formula, cannot find a place in regulation, but DA as per RBI pension scheme will be the incorporated in appendix clause number 15 in pension settlement, which is an undertaking by IBA not to make any demand on matters covered by pension settlement with individual banks cannot fit into the regulations. The clause remains in the settlement and is valid and binding on IBA. We need not rely on general clause 56 to claim updation. एक तो ये कहते हैं ये नाकारा जी, और एक वही उन्होंने कहा क्लोज 12 इन पेंशन सेटलमेंट एंड स्मॉल कमेटी मिनट्स विच स्टेट्स दैट अपडेशन विल बी बाय आरबीआई फार्मूला विल गेट अस अपडेशन। एक इन्होंने ये कहा है। एक इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है, मेन मैसेज इन्होंने लिखा है इसे, कि कहते हैं पेंशन रूल्स मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन फेवर ऑफ द एम्प्लॉय व्हेन मोर देन वन इंटरप्रिटेशन इज मेड। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, तो ये तो हमारे फेवर में जाती है बात। व्हेन आगे कहते हैं व्हेन पेंशन रूल्स आर कैपेबल और मोर इंटरप्रिटेशन देन वन, द कोर्ट शुड लीन towards that interpretation which goes in favor of the employee. सुप्रीम कोर्ट कहता है ये भी। The above observation in fact were made very recently in 2 different cases by 2 different benches comprising of 4 different senior judges of the Supreme Court. एक इन्होंने एक भेजा है और मूर्ति जी ने, देवपल्ली एस श्रीनिवासन मूर्ति हैं, केरल से हैं या चेन्नई से हैं। इन द ये आंध्र से हैं शायद। इन द मीन टाइम इंटरिम रिलीफ एक्सक्रेशिया लाइकली टू बी पेड एज पर MOU साइंड 7th December 23। हाउएवर फाइनल सेटलमेंट वुड बी साइंड बिटवीन IBA एंड UFB एट मुंबई ऑन 30th February 24। हालांकि हुआ नहीं, ये कल का था मैसेज, तो कल होना था, नहीं हुआ। इन द मीन टाइम द मोशन हियरिंग इन द लेट सिंगलाज केस हैज बीन वंस अगेन रिवर्टेड बैक 1st March 24 as per SC website. As of now, it may please be noted that entire full working day has been allotted for argument, counter arguments in a bid to expedite the long pending case once for all. ये कुछ थे उनके। एक इन्होंने और भी कहा, ये भी बता देता हूँ आपको।
अच्छा, ये तो पहले बता दिया मैंने। अच्छा, ये इसमें कह रहे हैं कि संजीव बंदलिस ने एक बार कहा था, इन्होंने ये बताया है, RBI फार्मूला विल रिजल्ट इन लॉट ऑफ एनोमलीज, पेंशनर्स ऑफ 7th BPS will draw more pension than subsequent retirees. It seems Mr. Bandlis once told that OROP will be implemented keeping the known workability of RBI formula in mind। ये इस संजीव बंदलिस का बता रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा था। देवपल्ली मूर्ति। तो यही कुछ थे। धन्यवाद साथियों। नमन। आर के त्यागी का